मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर सभागार में स्कूलों में छात्राओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में स्कूलों के उप प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले प्रतिभागियों का पंजीकरण हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह सभागार पहुंचे, जहां शिक्षा विभाग के अधिकारी ने उनका स्वागत किया। शिक्षा निदेशक के अलावा NCPCR नई दिल्ली की महिमा लाल, पुलिस अधीक्षक व पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के प्रधानाचार्य उमा शंकर, CPCR की पूर्व सदस्या एवं शिक्षाविद रुबीना सिद्दीकी, समाज कल्याण निदेशक एवं UTPCR के सचिव रविंद्र कुमार गणमान्य अतिथियों एवं स्रोत शिक्षकों के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। सबसे पहले अतिथियों ने दीप जलाकर इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का शुभारंभ किया। राज्य शिक्षा संस्थान की प्रधानाचार्य संगीता चंद ने शिक्षा निदेशक और अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन के आयोजन के मकसद के बारे में बताया। Your guidance, leadership has led us for the organization of this mega conference, which is now possible today. So we are truly grateful for your support and also for your esteemed presence. I really welcome you, sir, from my bottom of my heart. I take this opportunity to welcome Shri Uma Shankar, Principal, Police Training Schools. Sir, your esteemed presence, your guidance, and as a resource person, your enlightenment today will really guide us towards this cause. I also take this opportunity to welcome Ravindra Kumar, Director Social Welfare, also Secretary UTPCR. I extend my warm welcome to Srimati Manjulata Rao, Principal TGC, resource person today who will be available for the day-long conference, Mahima Lal, NCPCR, Srimati Rubina Siddiq, and other resource person who will be taking the day-long conference. Today, let me tell the house today, the participants are here from the 3 districts, and the participants include SNC members, PTA members, head of the institutions, and also representatives from other departments like social welfare, district administration from 3 districts, as well as also from police department. So I really extend my warm welcome to every participants who are here for the day-long conference. I also welcome Sujit Tangachand, who is here in the dais and who has been really helpful for various counseling and conferences which the Department of Education holds for the betterment of child. Sir, we are really humbled with your presence. Let me give a brief about the initiative that the Department of Education has already been doing in Andaman Nicobar Islands. Over the past many years, Department of Education has taken various meaningful and serious steps to ensure the safety and well-being of the child who comes to us in our campuses. There are lots of counseling programs held for the student and also in the capacity building program organized by DIET and SIE. We take it a point to give this insight on the topic of safety and security of children with the help of police department, with the help of health department, and also with the help of social welfare. This is an ongoing process which we do in our schools. Along with that, lots of facilities has been provided to our children. There are various clubs like Rani Lakshmibai, Atmaraksha Parikshans, in which the girl child of our school receive training on self-defense to make themselves powerful. We have got lots of programs like Jagriti Shibir, organized by Samagra Shiksha Kishori Club, Ma Beti Mela, establishment of care and comfort home. This is a very big initiative under Samagra Shiksha, where every schools have a special room dedicated to girl child, where they have their time, their private times during menstrual problem, free napkins provided to girl child, iron folic tablets are provided to them, and in midday meal, this is the special initiative of our UT
where in midday meal every student from class 1 to 8 gets special nutrition in the form of egg and banana. We do mental and health counseling also, especially from the State Institute of Education. We run a program called counseling program during to take away the stress of the students during board examinations, various career counseling program, POXO orientation programs. Every schools have a grievances box in which the child puts their grievances if they have anything to say, and they hesitate to say directly to the teacher or the head of the institution. And here I am very grateful for the presence of our SNC members, PTA members, because they play a very vital role. They are a backbone of a school, so all the SNC and parents support school in every initiatives, and their support is also really appreciated by Department of Education. समारोह में NCPCR नई दिल्ली की महिमा लाल ने बताया कि बाल अधिकारों और उनके खिलाफ हो रहे अन्याय की रोकथाम के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मकसद छात्राओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। It is absolutely my honor that I am sharing the stage with you all. I would personally like to thank Ms. Rubina Khatib Siddiqui. She is our subject expert from past 10 years, and she was also a former UT CPCR member. Her work has been tremendous. She has been working for the welfare of the children from past many years, and it has been an inspiration for all. So coming back to NCPCR, I believe everybody has heard or read something or the other about NCPCR work and what we have been doing from past so many years. I'll just quickly mention this, that NCPCR was established under CPCR Act 2005, function as a statutory body. And over the past many years, NCPCR has been working on many areas. And if I talk about specifically 6 months experience of NCPCR where we have worked, we have disposed of 26,000 complaints related to child rights, corporal punishment, POXO, health, juvenile justice. We have disposed of these numbers of complaints, of course with the help of district administration as well as state department. We have rescued 2,300 children from trafficking. This is, I'm talking about the 6-month data. And repatriated around 1,000 children to the CCIs, Child Care Institution. We have also been working in the advanced technology, like we are working on AI tools also. And very interestingly, we are also working for the children's health. I believe everybody here is aware of the fact that diabetes and issues like cholesterol are rising, specifically in cities where children are, and adults of course, are consuming lot of junk food. So NCPCR's one recent innovative is Sugar Board initiative, which has received appreciation from Honorable Prime Minister also. I wish and I believe that everybody has visited, or I hope that after this meeting, everybody will definitely going to visit NCPCR website for all the work that has been done over the years. And with this note, I would like to thank everyone. Thank you so much, and we hope that everybody will have a very fruitful sessions. सम्मेलन के मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने प्रतिभागियों को सलाह एवं हिदायत देते हुए कहा कि स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारा प्रिंसिपल्स का, वाइस प्रिंसिपल्स का, जोनल इंचार्जेस का पहला रवैया क्या होता है? अच्छा, कंप्लेंट आई है, ओके, इमीडिएटली उसको आप अपने जोनल इंचार्ज को बताएं, वाइस प्रिंसिपल अपने डीओ को बताएं, डीओ डायरेक्टली डी को बताएं। हम लोग उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम उसको सस्पेंड करेंगे। कोई भी 30 मार खाओ हो, हमने उसको किया है सस्पेंड।
ये रोल मॉडलिंग आपको सबको जाकर उस लड़की बच्चा को बताना है कि बेटा आपने कंप्लेंट की, हमने उस टीचर के खिलाफ एक्शन लिया है। फर्स्ट पॉइंट, ये मेरे सारे वाइस प्रिंसिपल्स की ड्यूटी बन जाती है। ये आप लोगों की स्टैट्यूटरी ड्यूटी भी है। पोक्सो एक्ट में सेक्शन 13(4) है, उसके अंदर अगर कोई भी क्लास टीचर जिसको उस गर्ल चाइल्ड ने इन्फॉर्म किया है कि मेरे साथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल इस तरह का अगर छेड़खानी हुई है, और अगर स्कूल टीचर या उसके ऊपर का वाइस प्रिंसिपल उस पर एक्शन ना ले, तो that teacher can be booked under POCSO. That vice principal is liable to be booked under POCSO. Okay? पहला बात तो सारे टीचर्स, सारे वाइस प्रिंसिपल इस बात को प्लीज ध्यान देंगे। लड़की बच्चा ने अगर कंप्लेंट की है, तुरंत उस कंप्लेंट को उस पर काम किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट अच्छे से बनाएं। ये हमने देखा है कि जैसे ही कंप्लेंट आती है, वर्बल के साथ उसको रिटर्न में उसको कंप्लेंट लें, रिटर्न में कंप्लेंट लें। और आप सबको एक्ट के बारे में पता है, या जिन लोगों को नहीं पता, अभी हमारे एसपी सर की लीडरशिप में जो भी टीम रहेगी वो आप लोगों को पोक्सो एक्ट के बारे में ये सब कुछ बताएंगे, रिसोर्स पर्सन बताएंगे। मैं खास तौर पे हमारे टीचर्स को एक ही बात कहना चाह रहा था, ये बहुत गंभीर बात है। ये इसलिए गंभीर बात है, अगर कोई लड़की +1 क्लास में पढ़ रही है और उसने फिजिक्स ली हुई है, उसने साइंस ली हुई है, और अगर उसके साथ छेड़खानी हुई और हम लोगों ने, आपने और मैंने, 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, 50% मेरी है, क्योंकि सारी कागजी कार्रवाई ऊपर उस सस्पेंशन के लिए CSR तक भेजना पड़ता है, वो मेरा है। +1 क्लास की लड़की जो एक फिजिक्स +1 सब्जेक्ट पढ़ रही है, अगर उसके खिलाफ छेड़खानी हुई और उसने कंप्लेंट करी और फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, तो उस PGT टीचर का कोई औचित्य ही नहीं बन जाता पढ़ाने का। वो लड़की पढ़ ही नहीं पाएगी, उसका दिमाग उन्हीं चीजों में रहेगा। शी विल बी अंडर डीप स्ट्रेस, she will be under deep anxiety that I can be harmed again and no action will be taken। और उस इंस्टेंस पे उसको साइकोलॉजिकल हेल्पलेसनेस हो जाएगी। हेल्पलेसनेस क्या होती है कि ये भाई मेरे को पीटने आ रहा है, मैंने पुलिस से शिकायत करी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मैं डर गया कि अगली बार भी आके कभी भी मुझे पीट सकता है और इसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। ये हेल्पलेसनेस उस बच्ची के मन में, वो 11वीं क्लास में वो हेल्पलेसनेस घुस जाएगी, और फिर वो कॉलेज में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, वो आगे शादी में भी नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी, वो डीप अंडर स्ट्रेस में रहेगी। मैं अभी भी रेट करता हूं कि अगर किसी लड़की के साथ +1 की गर्ल के साथ छेड़खानी हुई, उसको न्याय दिलाना ज्यादा जरूरी है उसको फिजिक्स पढ़ाने से। चाहे उस 1 से 2 महीने में पढ़ाई थोड़ी कम हो जाए, लेकिन शी शुड गेट द जस्टिस सो दैट उसको उसी वक्त एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आए। अगर उसको 11th क्लास में उसी वक्त उसने कंप्लेंट करी, अब वो डिगलीपुर की लड़की, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, डिगलीपुर की लड़की, उसने रिटर्न में उसने वर्बल कंप्लेंट करी, हमारी DO स्पेशली गई, उन्होंने टेक केयर किया और उससे रिटर्न में कंप्लेंट ली। उसके बाद कोर्ट में भी उन लड़कियों की पेशी हुई, हमारी टीचर साथ गई, जज के सामने भी उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोल पाया। उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? दैट एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट दैट कल्प्रिट। अब उस लड़की को वो पूरे जीवन के लिए एम्पावर हो चुकी है, उसके लिए फिर वुमेन एम्पावरमेंट की कॉन्फ्रेंस कराने की जरूरत ही नहीं है, वो जीवन भर के लिए एम्पावर हो गई है। और अगर वो लड़की वहां पे, अगर हमारी DO डिगलीपुर, उसकी क्लास टीचर डायरेक्टर विक्रम, अगर उस टाइम पे एक्शन ना लेता और वो
एक्यूज्ड अगर वहीं पे घूमता रहता तो वो लड़की पूरे जीवन के लिए डिप्रेस हो जाती। फिर आप चाहे कितने ही वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम कराते रहते, शी वुड नॉट बी एबल टू कोप आउट ऑफ दैट स्ट्रेस। इट्स नोन एज PTSD। नो मैम, ये रियलिटी है। मैंने यूपीएससी में आने से पहले 6 महीने एज एन NGO एक्टिविस्ट काम किया हुआ है। दिल्ली में इस तरह की जो सताई हुई महिला होती हैं उनका एक सेंटर होता है। हमारा कतकता नाम का एक NGO था जो जाके उनसे बात करता था और उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करता था। हम उन्हें रिहेबिलिटेट कर ही नहीं पाते थे क्योंकि उनके बचपन में डीप रूटेड स्कार, डीप रूटेड मतलब मन के अंदर इतनी चोट लग चुकी होती थी कि उनका रिहेबिलिटेशन 25-30 साल के बाद नामुमकिन है। उसको स्कूल में ही एम्पावर करना है और उसको स्कूल में एम्पावर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हमारी बेटी ने, लड़की बच्चा ने जब भी कंप्लेंट करी, स्कूल टीचर, वाइस प्रिंसिपल का ये सबसे जरूरी काम है। समग्र शिक्षा का टीवी खरीदने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो ये रोज हम लोग रिपोर्ट मांगते हैं, उन रिपोर्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका रिटर्न में लें, वो कंप्लेंट आगे कराएं सो दैट वी टेक एक्शन अगेंस्ट दैट एक्यूज्ड। अब लिया वो पीटी के अगेंस्ट लिया, वो जो भी था, वो असिस्टेंट था, वो लैब अटेंडेंट था या असिस्टेंट था, जो भी था। अब एक रोल मॉडलिंग होगी ना कि अगर कोई भी गलत काम करेगा और सारी बच्चियों को भी पता है कि भाई उस लड़की के साथ उसके खिलाफ छेड़खानी हुई, उसने कंप्लेंट करी और एक्शन हुआ। ये ही चाहिए बस, और कोई कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं हमें चाहिए। हमें बस स्कूल के लेवल पर ये चाहिए कि लड़की ने कंप्लेंट करी, आपने एक्शन लिया, हमने एक्शन लिया, बस। Why I am repeating this line 7th or 8th time? This is the most required thing. काइंडली मेरे सारे टीचर्स, हमारे वाइस प्रिंसिपल, हमारे DOs इस बात पे फोकस करें। That is the reason सेक्रेटरी सर, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर, हमारे NCPCR, हमारे सुजीत जी और पूरी टीम, ये SI, ये DD साइंस, ये लोग क्यों करा रहे हैं ये सारे प्रोग्राम? ये इसी के लिए करा रहे हैं। आप 1-2 पॉजिटिव रोल मॉडल दो, अपने आप पॉजिटिव रोल मॉडल फैलते जाएंगे। ओके, इस टॉपिक पर बात हो गई। नाउ कम्स अभी और भी रिसोर्स पर्संस हैं, दे विल टॉक अबाउट टेक्निकल थिंग। मैं 2 से 3 प्रैक्टिकल चीज पर बात करूंगा जो कि हमारे स्कूल्स में वी आर फेसिंग। आजकल गर्ल ये पोक्सो रिलेटेड एक्टिविटी से तो उनको सेव करना ही है। वो हमारे टीचर लोग, हमारे SMC मेंबर्स, पुलिस, ये सब लोग काम करें। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट एक और काम है, वो क्या है? ग्रुप कल्चर। 5 से 7 लड़का लड़की का जो कंबाइंड ग्रुप जो रहता है, अनफॉर्चुनेटली दे हैव स्टार्टेड टेकिंग सम सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है? तंबाकू खाना, पान के बाद शराब पीना, उसके बाद गांजा लेना, ड्रग्स लेना। अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स तक ये पहुंच चुका है। हमें स्वीकारना होगा। मैं स्वीकार चुका हूं, आप लोग भी स्वीकारें। वो बॉयफ्रेंड उस लड़की को ये कहता है कि अगर आपको हमारे ग्रुप में रहना है, आपको अगर कूल बन के रहना है, तो आपको हमारे साथ हैश पीना पड़ेगा, थोड़ी बियर पीनी पड़ेगी और थोड़ी ड्रग्स लेनी पड़ेगी। उसके इन्फ्लुएंस में आके वो गर्ल चाइल्ड वो करती है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कई बार वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है और वो वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद वो अगले 2 से 3 साल तक ब्लैकमेल होती रहती है। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली अंडमान पुलिस को, हमारे SP सर को स्पेशलाइज थैंक्स कहना चाहूँगा कि पिछले 5 से 6 महीने के एक्सपीरियंस में
मैंने देखा जब भी हमने एसएचओ को कंप्लेंट करी है तो साइबर टीम ने वो वीडियो डिलीट की है। लेकिन बहुत बार वो लड़की ब्लैकमेल ही होती रहती है, हम तक खबर ही नहीं पहुंच पाती। तो वहाँ पर हमारे वाइस प्रिंसिपल्स और हमारे टीचर्स और पीजीटीज, इनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। वो क्या रोल है? क्लास चल रही है, मैं भी पहले टीचर ही था इसलिए उस एक्सपीरियंस से ये बात बोल सकता हूँ। क्लास चल रही है, 20 से 25 बच्चे, आप एकदम से देखते हो कि एक लड़की जो पूरे साल अच्छा काम कर रही थी, क्यों वो पिछले 10 दिन से सहमी है, घबराई हुई है? आप पूछिए उससे। वो आजकल बच्चे घर से ज़्यादा टाइम हमारे स्कूल्स में रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी हमारी पेरेंट्स से ज़्यादा हो जाती है। आप लोग प्लीज़ उनसे पूछिए, आप लोग पूछ रहे हैं, आई नो, आप उस गर्ल चाइल्ड से पूछिए बेटा क्या दिक्कत हुई है। वो एक बार में नहीं बताएगी, 8वीं 9वीं 10वीं बार पूछना पड़ेगा। उसकी फ्रेंड से पूछिए क्या दिक्कत हुई है, वो क्यों एब्सेंट हो रही है बार बार। आप यू विल डेफिनेटली गेट ए क्लू, बिकॉज वो इतनी परेशान है, शी वॉन्ट ए हेल्प, मतलब वो मदद चाहती है लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकती। वो कई बार वो टीचर्स के साथ भी नहीं शेयर कर सकती, ये सोच के कि शायद मेरा नाम बदनाम हो जाएगा या टीचर मुझको समझेंगे नहीं। लेकिन स्पेसिफिकली अंडमान में मैंने ये देखा है कि टीचर्स काफ़ी इस मामले में बहुत सेंसिटिव हैं, वो सुनते हैं, वो खुद भी पूछते हैं। काइंडली ये वाला काम करते रहिए, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। ये जो खेल है ना, इट्स अनफॉर्चुनेटली इट्स ए नेगेटिव विशियस साइकिल, जो कि पान बीड़ी तंबाकू से शुरू हुआ, फिर शराब पे गया, ड्रग्स पे गया, उसके बाद वो गर्ल चाइल्ड वो उसके ट्रैप में फंस गई। फैक्ट सेज दैट girls are more consuming drugs in Andaman with comparison to boys. Okay? So स्कूल के लेवल पे जहाँ भी जो भी आपके स्कूल का वो कोना है जहाँ पर रिसेस के टाइम पे, स्पोर्ट्स पीरियड के टाइम पे बच्चे खेलने की बजाय 5 से 7 बच्चे कोने में बैठे हैं और कुछ इस तरह की एक्टिविटी करें, तुरंत अपने पीटी को वहाँ पर भेजिए। आप आई नो सभी वीपीज आप लोगों के पास बहुत इम्पोर्टेंट काम है, पीटीज को भेजिए कि किसी एक्टिव पीएसटी को भेजिए, वो जाएगा, वो देखेगा। पता है जैसे कहते हैं ना सांप को देखते ही मार दो, वही वाला है सिस्टम। आप अपने स्कूल के अंदर ये जो थोड़ा बहुत बच्चे जो कर रहे हैं ना, उसको शुरू होते ही उसको नस्ता नाबूद कर दीजिए। CPCR की पूर्व सदस्य रुबीना सिद्दीकी ने सत्र को संबोधित करते हुए मल्टीमीडिया प्रस्तुति के माध्यम से अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, स्कूल प्रबंधन और स्कूल के प्रमुखों की जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। सो टुडेज वर्कशॉप आप जान ही रहे हैं कि आज दिन भर का जो एक कॉन्फ्रेंस है उसमें से एक मेजर मुद्दा जिस पर हम बात करने वाले हैं दैट इज अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल हेड, स्कूल टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट एंड एसएमसी मेंबर्स। हम अकाउंटेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी सुनने में तो एक बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म लगता है, एक ऑर्डर आया, इसको कंप्लायंस करना है और हमारा काम खत्म। बट एक्चुअली जो अकाउंटेबिलिटी शब्द है वो एक हार्ट बीट होती है स्कूल की, क्योंकि हर पॉलिसी, हर नोटिस, हर ऑर्डर, हर रजिस्टर जो स्कूल में रखा जाता है उसके पीछे एक बच्चा होता है, अ चाइल्ड हुज डिग्निटी, हुज सेफ्टी डिपेंड्स अपॉन अस as in the stakeholders in the school, primarily starting with the management, the school heads, school teachers, parents, SMC members specifically. Accountability की बात और भी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं इंडिया का जो चाइल्ड पॉपुलेशन है, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा चाइल्ड पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है। स्कूल्स एक जगह है जहाँ पे बच्चों को ट्रस्ट और सेफ्टी के लिए लाया जाता है। चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ द एक्टिव टाइम इन स्कूल।
इसके बाद श्रोत व्यक्तियों ने प्रमुख बाल अधिकार मुद्दों और उनसे जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिभागियों से बातचीत की और उनके द्वारा उठाए जा रहे शंकाओं का निवारण करने का प्रयास किया। हमें बैलेंस करना है, हर चीज़ हम टीचर और प्रिंसिपल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो गलत है, हमको चेंज करने की अपने आप को आवश्यकता है, क्योंकि जितना मेरी नॉलेज में है वो FIR रजिस्टर हुआ, उसमें बच्चे ने पढ़ाई करना, मतलब मैं जाऊँगा ही नहीं स्कूल, उसने बोल दिया। मैं एरिया नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन ऐसा हुआ है, FIR इस ठीक है। हम FIR तक जाए इससे पहले हम ये देख लेते हैं ना कि हम ऐसा करें ना, अगर ऐसा है तो वो गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते किसी भी बच्चे को। इतने ओवरलोडेड है, इतने वर्क से ओवरलोडेड है, आप मिनिस्ट्री लेवल में ये कर दीजिए कि काउंसलर्स को अपॉइंट करने का कोशिश करिए। काउंसलर्स, बिकॉज हमारा काउंसलिंग एंड प्रोफेशनल काउंसलिंग में देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्कूल का माहौल ऐसे बनाएं कि इंक्लूसिवनेस का एक माहौल होना चाहिए। तो जो भी स्कूल में हुआ, पर्टिकुलरली उस स्कूल के हेड को और टीचर्स को एक कल्चर स्कूल में ऐसा बनाना चाहिए दैट एवरीबडी इज़ इक्वल। तो वो शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। एक हो गया इंसिडेंट, बट वी शुड इंश्योर कि ऐसी दूसरी जगह नहीं हो, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। एंड जैसे कि आपने कहा कि बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। सबकी बातें एक तरफ हो जाती है और जो बच्चे का मेंटल ट्रॉमा होता है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। So I think it's the school environment which needs to be changed, and it can start with the school head and the teachers together acting in tandem with the children. We are noticing our report writing is being conducted, but they are doing it right away, and we note this point and all this report of the states and UTs wherever we are conducting these programs, which I also mentioned in the beginning.